Yes. Good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. So my request to everyone is please switch on your camera. So that is the first thumb rule that we have in the meeting. Dude, so Yes. So who will be switching on the camera? So I will be keeping in the class. Rest I will remove now. So anyone who is removed from the meeting now, he will not be able to attend today's rest of the class. That is clear from my side. Now next you have to decide. You want to remain inside the class, it's fine. If you want to get removed, that's also fine. So within next couple of minutes, we will start the class. First, we will allow. Yes, और also ये रीनेम कर लो जो आप अपने नाम है उसी नाम से एंटर करो ये honor 6x. So like these, I will remove one by one from the class ना. That is clear from my side. रिमूव होने के बाद ना बोलना सर कि आज क्लास में से बाहर क्यों निकाल दिया फर्स्ट क्लास से अंदर. So the point should be clear to everyone. So this is my final request to everyone. If the camera is not on, I am going to remove one by one the person who is not there with the camera. So Vanshika is there. And only Tarun Jyot is left without the no. So few more students are joining in. So the thumb rule is that your camera should be on throughout the class, and whenever you are allowed to say something, only then you intervene. Otherwise, you have to keep yourself muted. So this is our first class on Zoom. So I welcome you all into this first class on Zoom. So this is the final request to Mr. Tarun Jyot. If your camera is not working, so I am going to start removing the persons now.
So in the next couple of minutes, we'll start the today's topic. Yes, who will basically start the discussion on artificial intelligence? Anyone who wants to basically start the discussion on AI? Because today's lecture we will focus more or less on the emerging trends, artificial intelligence. So we'll keep focusing on the artificial intelligence. You are looking at in and around the different uses of AI. Yes. So there are still six persons are there. Priyanka, Romika, Saksham, Veerpal, Dilbag, and Muskan. So this is the final request to them. If their camera is not working, so they can take a rest. Romika. So Veerpal, we don't have this much time to keep on waiting for your camera. Na? This is not basically the clear. So we'll start the today's topic on AI. That first of all, we will be sharing a video on this AI today's topic, and then we will start a discussion on this. There has never been a better time for artificial intelligence. With big data, cloud, and seamless connectivity, digital voice assistants, smart robotic devices, real-time navigation, the world is ready to explore the potential of this single largest technology disruptor. From defense, healthcare, agriculture, education, transportation, space. The impact of AI has augmented human capabilities to a massive extent. Artificial intelligence for Atmanirbhar Bharat. Technology opens an entirely new sphere and sector for growth. It also opens an entirely new paradigm of opportunities. Artificial intelligence is all set to contribute an $967 billion to India's economy by 2035. India projects a tremendous potential to be the next big hub for the experimentation, testing, and development of AI technology. Besides the abundance of talent and latest technologies, India has the rich reserve of public data, which together are the growth drivers in AI investments and innovations. For the economy's explosive growth and inclusive social empowerment through AI-assisted healthcare facilities, real-time advisory, smart education, and infrastructure. Welcome to India, a garage for artificial intelligence-powered products and services. AI to unleash its true potential. Tune in to the next 5 days of Global Artificial Intelligence Summit, RAISE 2020. Responsible AI for social empowerment. Yeah.
So basically, we have seen the importance of AI. Where what is the importance of AI is there. So yes, Vanshika. So may I ask the इसमें AI has been introduced as a technology disruptor. ये क्या मीनिंग होता है? टेक्नोलॉजी डिसरप्टर क्या होता है? कुछ बता सकते हो इसके बारे में? Sorry, sir, I don't know about it. Okay. Anyone who wants to basically contribute on this technology disruptor? Yes, so this is my another final request to everyone is जिनका कैमरा ऑन नहीं है, so I am removing those persons. ठीक है, जिनका ऑन हो सकता है वो ऑन कर लेना. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी डिसरप्टर क्या है बेसिकली? yes, so there is a question by Amarveer want to ask. Yes, Amarveer, you can basically unmute and ask a question. So I wanted to answer. So Yes. basically, technology disruptor is a new product or new technology that is being introduced, which is impacting the manufacturing sphere. Yes. So disruptor basically क्या है? That is the disruptor is कि जिससे बेसिकली जो आने वाला टाइम है that will get disrupted in a big way. Clear? जैसे वीडियो के अंदर दिखाया गया है that is in the days to come by 2035 937 billion will be added into the economy. तो disruptor means है कि ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, everyone will get affected by the AI. So that's why the government is putting a lot of emphasis on the AI side, basically to get the benefits of AI into the economy. और already बहुत सारे countries हैं those who have taken a leap step, giant step in this direction. जैसे चाइना है, जापान है, that is America. They have done a lot of work in this directions. So in the next video we will discuss see the importance of this AI clear in the healthcare sector. Clear? So just see and थोड़ा सा इसमें से अगर आपको कोई important point लगता है, so please note down because you know the video goes it like anything it moves. तो उसमें से जो भी आपको vital point लगता है ना, तो उसको नोट किया करो so that we can make that point the part of discussion. वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि वीडियो देख ली और जस्ट बहुत अच्छा सर ने बहुत अच्छी वीडियो दिखा दी. तो कोई उसमें से जो भी आपको क्रिटिकल पॉइंट लगता है ना वो नोट किया करो एंड वी शुड हैव ए डिस्कशन ऑन दैट. सो नेक्स्ट वी विल हैव ए वीडियो सो दैट इज बाय ये मेरे को बताना भी आपने वो पर्सन भी आइडेंटिफाई करना है कौन ये वीडियो में प्रेजेंटेशन दे रहा है. और डिस्कशन वीडियो के बाद ही करनी है, उसके बीच में ना शुरू कर देना डिस्कशन. Just wait. Clear? So now I am going to share the screen and we will have the second video. Many fields. And I want to give you a couple of examples. Yes. The audio is clear to everyone? Say like thumbs up or like this. ठीक है. Thank you, beta. Thank you. AI is going to impact many fields. And I want to give you a couple of examples today. Healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced our work on diabetic retinopathy, which is a leading cause of blindness, and we use deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Aravind and Sankara hospitals in India
and the field trials are going really well. We are bringing expert diagnosis to places where trained doctors are scarce. It turned out, using the same retinal scans, there were things which humans quite didn't know to look for, but our AI systems offered more insights. Your same eye scan turns out holds information with which we can predict the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event, heart attack or strokes. So to me, the interesting thing is that, more than what doctors could find in these eye scans, the machine learning systems offered newer insights. This could be the basis for a new non-invasive way to detect cardiovascular risk. And we just published the research, and we are going to be working to bring this to field trials with our partners. Another area where AI can help is to actually help doctors predict medical events. Turns out doctors have a lot of difficult decisions to make, and for them, getting advance notice, say 24 to 48 hours before a patient is likely to get very sick, has a tremendous difference in the outcome. And so we've put our machine learning systems to work. We've been working with our partners using de-identified medical records. And it turns out if you go and analyze over 100,000 data points per patient, more than any single doctor could analyze, we can actually quantitatively predict the chance of readmission 24 to 48 hours before, earlier than traditional methods. It gives doctors more time to act. We are publishing our paper on this later today, and we are looking forward to partnering with hospitals and medical institutions. So that is the video. So who was the anchor there? So I know that most of you know that who was the anchor. So Amarveer is saying CEO of Google. yes, CEO of Google, Sundar Pichai. He is from India, and he's from Madras itself. Clear? And he's the CEO for last more than 3-4 years. He's there. Clear? So basically, that is how the Google is working on the healthcare sector. Clear? So what was the main point he was जो initially वो discussion के अंदर discuss कर रहा है? Clear? Anyone who wants to bring that point? So yes, Amarveer को रहने देते हैं Amarveer. So we bring the other people into the discussion part so that more and more people. Yes, Romika, you want to intervene? Yes. Yes, sir. Yes. AI can be useful to predict that the person can be taken to the hospital between 24 or 48 hours before. Yeah. Basically कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? Basically level of prediction is quite high इस केस में. ठीक है कि जैसे डायग्नोज करके हम थोड़ा डॉक्टर जो है उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं एंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि तुम्हें चांसेस ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी सीवियर, ज्यादा है या कम है. ठीक है, वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव इंटरवीन्ड. सो लेट्स नाउ ब्रिंग मिस्टर दिलबाग इनटू डिस्कशन. यस दिलबाग, कोई भी तेरे को पॉइंट जो लगा है प्रेजेंटेशन में से, द पॉइंट की पॉइंट यू हैव आइडेंटिफाइड टू बी डिस्कस्ड. यस, ओवर टू दिलबाग. यस, अनम्यूट दिलबाग. यस सर. यस, कोई भी तेरे को जो इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा है इसमें से डिस्कशन में से. सर जेड़े हेलो. हाँ जी सुन रहे हैं बेटा. सर जेड़े औखे ऑपरेशन हुंदे आ सर उन्नू कंप्यूटर मतलब छेती कर दिंदा है. AI जेड़ा टेक्नोलॉजी है छेती कर दिंदी है ते जेड़ी मतलब बाकी जेड़े हुंदे डॉक्टर कई डर भी जांदे आ ते वो कर नहीं सकदे. चलो ठीक है, ये आसान कर दिंदी है कि ऑपरेशन छेती हो सकदे. वेरी गुड पॉइंट. सो बेसिकली जो इसके अंदर प्रेजेंटेशन में सबसे की पॉइंट जो इसके अंदर डिस्कस हुआ था, दैट वाज द रीजन ऑफ ब्लाइंडनेस. इंडिया के अंदर बिगेस्ट रीजन ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है? यस एनीवन, ये इसी प्रेजेंटेशन में डिस्कस हुआ है. एनीवन? यस श्रिया.
So I have basically found here in this video is that AI helps in identifying whether the person is suffering from diagnosis of retina or not. It helps in scanning the eye, and it easily identifies whether it is suffering from retina problems or not. ठीक है, very good, So very good, good point. mainly- Like I just want to intervene here. बहुत अच्छा जो आप point discuss कर रहे हो, that is इंडिया के अंदर biggest reason of जो blindness है, that is through the diabetes के अंदर क्या होता है कि हमारी जो retina है that get affected, and that is the biggest source of blindness in India. तो इसके अंदर गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल ने जो अपना AI सिस्टम बनाया है, and they have tied up with few hospitals in India, तो जिसके अंदर क्या है कि बेसिकली इस ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने का मेथड क्या है? कोई बता सकता है कि जो डायबिटीज से ब्लाइंडनेस होती है उसको रोकने का बिगेस्ट मैकेनिज्म क्या है? Yes, anyone, कोई भी जो इंटरवीन कर सकता है. That is, I will not ask anyone now specifically. So जो बेसिकली इसका बिगेस्ट रीजन है जिससे हम ब्लाइंडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द अर्ली डिटेक्शन. ठीक है कि जिसको डायबिटीज है, अगर उसको रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर उसका जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो उस सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकते हैं. क्लियर? तो यही जो गूगल ने जो अपना AI सिस्टम डेवलप किया है, दैट इज फॉर प्रेडिक्शन ऑफ दैट प्रॉब्लम. क्लियर? जो बेसिकली एक डॉक्टर जो वो बेसिकली वो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, उससे उनका सिस्टम फार बेटर और अर्ली डिटेक्ट कर लेता है. तो वो बेसिकली उन्होंने वो क्या है, वो बेसिकली उनका सिस्टम आपकी आईज को चेक करेगा और उसकी रेटिना में से वो उनका सिस्टम वो डिटेक्ट कर लेता है कि इसको कितने चांसेस हैं कि इसको लेटर ऑन ये जो रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको हो जाएगी, ये जो डायबिटिक पेशेंट है. क्लियर? सो दैट इज द अर्ली डिटेक्शन जो सिस्टम जो गूगल ने डेवलप किया है. ठीक है जी? तो एक तो ये इसका बेनिफिट है. और आपको कोई लगता है, यस फ्रॉम दिस साइड, यस प्रियंका, और कोई पॉइंट जो लगता है आपको जो फ्रूटफुल है इसमें, दैट यू कैन ऐड? Sir, I don't think more कोई point है इसमें. ठीक है, मतलब कि आपके हिसाब से सारे पॉइंट कवर हो गए हैं. यस फ्रॉम दैट साइड, महक, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? अब सभी को एक बार मौका मिलेगा, एंड देन आई विल वाइंड अप. Sir, with early diagnosis, life rate can be increased. यस डेफिनेटली. देखो किसी भी बीमारी के अंदर जो बेसिक लॉजिक है कि जितनी जल्दी हम उसकी डिटेक्शन कर लेंगे उतने चांसेस कि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, उसका सोल्यूशन निकल जाएगा. सो द चांसेस गेट्स बेटर इंप्रूवमेंट के, और रिस्क को मिनिमाइज करने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे. यस, ऑनर 6x, अपना बेटा नाम लिखा करो यहाँ पे, ऐसे मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? यस. तो सॉरी सर. हाँ तो सर मैं भूल गया था सर. हाँ. फास्ट पेस ऑफ लर्निंग सर. हाँ ठीक है सर वो बहुत जल्दी सर लर्न कर सकते हैं, और हमें सर 2-3 साल लग जाते हैं बुक पढ़ने को सर. ठीक है. Exam ये देखो जैसे आपने जो सुंदर पिचाई की डिस्कशन है उसके अंदर उसने एक बड़ा की पॉइंट डिस्कस किया है कि देखो इंडिया के अंदर ऑलरेडी देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स. ठीक है? तो उन्होंने अपना AI सिस्टम बनाया इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जहां जहां डॉक्टर्स की कमी है, सो दैट वी कैन कवर अप विद द टेक्नोलॉजी. ठीक है? उसको हम टेक्नोलॉजी से कवर कर सकते हैं. जैसे उन्होंने रेटिना डिटेक्शन सिस्टम जो बनाया है, वो डिवाइस जो है वो डिवाइस आपकी आंख में लगाएंगे, तो वो डॉक्टर की जरूरत नहीं है उसमें. कोई भी नर्स जो है या थोड़ा ट्रेन्ड पर्सन है वो उससे डिटेक्ट करके वो बता देगा कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है. सो दैट इज वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन. एक और अच्छा सॉल्यूशन इसमें है कि जैसे कंट्री लाइक इंडिया में ऑलरेडी डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है. मींस सिटी एरिया में तो डॉक्टर्स अवेलेबल है, जलंधर है, लुधियाना है, बट इफ यू गो टू दी हिंटरलैंड तो वहां पे गांव में डॉक्टर वगैरह तो इतने अवेलेबल ही नहीं है. क्लियर? तो उसको भी ये एक पॉइंट जो है, एक एडिड पॉइंट है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री लाइक इंडिया. ठीक है जी? एंड दैट इज
दूसरा जो इसका और एक बेनिफिट है कि जो ह्यूमंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको इस प्रॉब्लम को अर्ली डिटेक्ट करना बड़ा चैलेंजिंग है। जब प्रॉब्लम हो जाती है तब तो वो बड़े आराम से डिटेक्ट कर लेंगे कि ये भैया तेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, बट इस सिस्टम के ऊपर व्हाई दे आर वर्किंग सो हार्ड कि इसकी अर्ली डिटेक्शन करनी है। हु आर द पर्संस दोज हु आर वनरेबल टू दिस वेरी प्रॉब्लम, कि किन किन को ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आप लोगों को अगर आपकी फैमिली में या कहीं दूर आसपास अगर कभी भी आपने कोई सोसाइटी में कोई ऐसा पेशेंट देखा हो, बिकॉज यू नो इंडिया के अंदर डायबिटीज बहुत ज्यादा है। नो, इंडिया इज द कंट्री दैट इज द लीडर इन डायबिटीज, तो डायबिटीज के पेशेंट बहुत है इंडिया के अंदर। तो डेफिनेटली जो रेटिना रिलेटेड ब्लाइंडनेस होती है वो भी वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम कहाँ पे हो रही है, इंडिया के अंदर ही हो रही है। तो मेरे को लगता है कि जैसे मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जिनकी ब्लाइंडनेस इसी प्रॉब्लम से हुई है, तो आप भी जैसे सोसाइटी में घूमते हो तो आपको भी पता चलेगा दैट इज सम और द अदर डे यू विल फाइंड द पर्सन जिसको डायबिटीज पिछले 20 साल से है, तो लेटर ऑन उसको रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो इसमें जो मेजर फोकस है दैट इज ऑन, एक कीवर्ड है इसके अंदर, प्रिडिक्शन। तो हमने प्रिडिक्ट करना है कि इस बंदे की प्रोबेबिलिटी इज हाई है प्रॉब्लम इस डिजीज की या कम प्रॉब्लम है। सो नाउ वी विल मूव टू द डिस्कशन टू द लास्ट पार्ट। एक और 2 मिनट की वीडियो है, सो दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। Yes, Dilbag Singh saying that in military, yes, also military में भी इसका यूज है, बट हम हर एरिया को यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। दैट इज clear. So this is the final video of the day. So so this was the video basically. So आपने ये देखा होगा, दिस वीडियो इज फ्रॉम चाइना। और कोई बता सकता है ये किस कंपनी का स्टोर था? एनीवन हुआ जिसने देखा हो? ऐसा एनीवन? Alibaba. Yes, very good, very good. So you know that is one of the world's largest company है इस सेक्टर में। जैसे Amazon कंपनी है तो उसके बराबर लेवल की ये कंपनी है, दैट इज Alibaba। और लॉजिस्टिक्स में वो दैट इज नॉट लेस देन दैट Amazon, ऑलमोस्ट इक्वलेंट इसके काम करती है। और उसने क्या किया हुआ है, उसने वन ऑफ देयर यही जैसे इंडिया के अंदर जैसे Amazon काम कर रही है, दैट इज जैसे आप कुछ भी ऑनलाइन कुछ परचेजिंग करते हो तो वो आपके घर तक कैसे दे आर ब्रिंगिंग द मटेरियल। तो उसी का एक स्टोर है, अलीबाबा का स्टोर है इन वन ऑफ द सिटी इन चाइना।
तो वहां पे क्या कर रहे हैं कि जो भी आप गुड्स और चीजें मंगवा रहे हो तो वो स्टोर से ह्यूमन फ्री है, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। आप जो भी आप ऑर्डर करोगे तो उस स्टोर में से आपने देखा होगा वो जो बोट्स हैं, क्लियर, वो बोट्स आपके जो सामान है उसको वहां से उठा के, स्टोर में से उठा के, और कैसे वो जो पर्सन है पैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइनल जहां से बिलिंग हो रही है, तो वो बिलिंग भी बेसिकली आजकल मैनुअल नहीं होती उसके अंदर, वो बिलिंग भी आई नो दैट इज ऑटोमेटिक ही है, क्लियर। एंड हाउ दिस थिंग्स आर बेसिकली यूज्ड इन, तो ये हमने थोड़ी सी एग्जांपल देखी है। ऐसे ही ये तो लॉजिस्टिक्स में हो गई और शॉपिंग में हो गई एआई का यूज। ऐसे आप, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नाम स्मार्ट सिटीज। अब स्मार्ट सिटीज में क्या होता है, जैसे ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम को कैसे कंट्रोल करना है। सो मतलब कि इसकी एप्लीकेशन हर डोमेन में है, इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड नहीं है कि हमने एक चीज देख ली है, हेल्थ केयर देख लिया तो इसकी एप्लीकेशन खत्म हो गई, और हमने एक ड्राइवरलेस कार देख ली तो बस खत्म हो गया ये। सो एआई, जैसे ये दिलबाग ने क्वेश्चन पूछा है कि दैट इज नो दैट इज ही हैज पॉइंटेड आउट कि जैसे मिलिट्री के अंदर यूज है, तो मींस हर एरिया के अंदर यूज है। ये हमने डिसाइड करना है दैट इज वेयर इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड। सो दैट इज द की पॉइंट। सो बेसिकली वीडियो दिखाने का यही पर्पस था कि थोड़ा सा हम रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाए कि एआई का कितना ज्यादा यूज हो रहा है एंड व्हाई द गवर्नमेंट, यू नो दैट इंडिया के अंदर व्हाई, अब आपको पता होगा सीबीएसई में ये सब्जेक्ट 8th 9th में एआई को इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस एट 8th 9th, कि बच्चा जो छोटा है वो वहीं से थोड़ा पिक करना शुरू करे रिलेटेड टू एआई, and so that we can bring in more and more young students into the field of AI। तो ये पर्पस है। जैसे आप लोगों को कईयों को इंटरेस्ट होगा हाउ टू गो एंड पेनिट्रेट इन दिस एरिया, सो दैट इज वेरी चैलेंजिंग एंड मोटिवेटिंग एरिया इन द डेज टू कम, क्लियर। So anything else you want to add about this video? Anyone? Yes, Saksham, we will ask those who have not participated in the discussion. सर इसमें एक तो डिसएडवांटेज है कि 60% ह्यूमन लेबर कम पड़ रही है, तो जॉब्स ही कम हो जाएंगी। ओ बेटा ये देखो ये एक बेसिकली ना, आपने एक कभी वर्ड सुना है ट्रेड ऑफ? ट्रेड ऑफ वर्ड का सुना है आपने? ट्रेड ऑफ पता क्या होता है? सर ट्रेड ऑफ एक सिनारियो होता है जिसमें एक चीज का बेनिफिट है, एक चीज का नुकसान। अब मोबाइल यूज कर रहे हो? हाँ जी सर। तो मोबाइल के तो नुकसान भी बहुत हैं। नहीं सर, पर लाइक क्योंकि एआई को प्रोग्राम करने के लिए मैक्सिमम 10-15 लोग लगेंगे, अगर ऐसे करके 100 लगेंगे, पर सर 70% से तो हजारों की जॉब जाएंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हजारों की जॉब जाएंगी ऐसा, बिकॉज सी अगर हम उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सारा का सारा बिजनेस तो चाइना ले जाएगा। व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हम एक चीज के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ठीक है, कि इससे क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो सारा का सारा बिजनेस तो चाइना अमेरिका ले जाएगा। हम लोग क्या करेंगे इधर बैठ के? ना तो हमारे पास काम रहेगा, ना हम एआई में काम करेंगे, क्लियर। तो हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। वी कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज द कैच 20 सॉर्ट ऑफ ए सिनेरियो, कि हर एक चीज का फायदा भी है नुकसान भी है, क्लियर। तो वी हैव टू थिंक ऑफ एंड प्रोसीड फर्दर, कि जैसे ये देखो जो एआई से जॉब जनरेट होंगी कम से कम वो तो इंडिया में आएंगी। यू आर थिंकिंग ऑफ दिस और नॉट? अगर हम एआई के अंदर, इंडिया में एआई के अंदर काम नहीं करेंगे तो जो एआई से जॉब जनरेट हो रही है वो सारी चाइना और यूएस में चली जाएंगी। सो वी आर आल्सो लूजिंग दी अपॉर्चुनिटी अगर उसके अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्लियर। सो लाइक गुड पॉइंट बाय सक्षम। एटलीस्ट इसने हाईलाइट किया है कि इसकी प्रॉब्लम भी है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेटली देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑन द जॉब साइड आल्सो, बट ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन निकलता रहता है। और जॉब्स के और भी एरिया हैं where we can put up our human force. So we will bring someone. Yes, Jasmine Kaur. So Jasmine, आप अपना point बताओ कोई भी, whatever the point you have. Sir, the robots are managing the warehousing, which is very helpful in the places where the population is high. और ये देखो जो ये जितने भी बोट्स हैं ये आपस में टकराते भी नहीं है। ये दे आर यूजिंग दी लेजर टेक्नोलॉजी, जिससे ये आपस में, ये नहीं कि आपस में भिड़ जाएंगे सारे और पता लगा स्टोर में आज के दिन सारे आपस में भिड़ गए हैं और कोई काम भी नहीं हो रहा है। सो यू नो दैट दे आर वेरी प्रॉपरली दे आर पुट इनटू प्लेस।
So now let's move to Galaxy 08 तो बेटा कल से अपना नाम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना, यहाँ पे मेरे को बहुत डिफिकल्टी आएगी ऐसे। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। I'm Bhavya. हाँ भव्या, ठीक है भव्या। So yesterday I was just thinking of some examples of AI as you told in government fees. So Yes. I would like to share them. First of all, I thought that nowadays the toll tax, the free tax are used for payment. For FASTag, of the toll FASTag, that is FASTag is being used. Yes, Yeah, ठीक, sir. yes, good. The second example is that the jammers are being used in the examination halls, like of where the competitive exams are being held, Yes, yes. so that वो there is वो no cheating in the वो थोड़ा भव्या हाईलाइट करो, वो जैमर किस लिए होता है? so that I mean मुझे इतना नहीं पता, but to हाँ। reduce the chances of cheating. हाँ, वो कैसे होता है? वो जैमर बेसिकली होता है कि जैसे अगर एग्जामिनेशन रूम के अंदर कोई पर्सन मोबाइल लेके आया है ना, वो मोबाइल की डिटेक्शन के लिए है कि उससे मोबाइल डिटेक्ट हो जाए, और बेसिकली वो जैमर जो है वो मोबाइल को काम नहीं करने देता, बेसिकली ये उसका रोल होता है। यस, गुड। Yeah, and then in the ATM security, for ATM security, the alarms are being set. So whenever someone means unauthorized enters or does something, the alarm. Yes, good one, good one. And our principal sir also shared last year that in the exams for setting the options for the objective type, so they are set by the AI, so that they are very confusing and the students get confused and they take the wrong answers. हाँ, बढ़िया। तो बेसिकली ये देखो बेटा, ये जो हम फास्ट टैग का इंडिया के अंदर, ये देखो जो टोल के ऊपर फास्ट टैग का यूज हो रहा है, हाउ इट इज हेल्पिंग। एक तो ये है कि इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोट हो रही है, तो नंबर 1 फायदा ये हो गया कि वी आर नॉट यूजिंग कैश, वी आर यूजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस। दूसरा इसका मेजर बेनिफिट है, दैट इज कि पहले क्या था, पहले वहां पे जाम बहुत बड़ा लगता था, तो उससे क्या होता था, दैट इज बेसिकली अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ फ्यूल की वेस्टेज है वहां पे। टाइम की भी कितनी सेविंग हो रही है, टाइम भी सेव कर रहे हैं, और देखो हम इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा फ्यूल भी सेव कर रहे हैं। क्लियर? सो दैट इज हैविंग एक चीज के कितने मल्टीपल फायदे भी हैं। मैनुअल सिस्टम से वो बड़ा स्लो था, दैट वाज पासेस ऑफ फ्रॉम दी जो टोल से हम पास करते थे। नाउ दैट हैज बिकम वेरी वेरी एफिशिएंट। तो देखो इंडिया के अंदर भी ये देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है। सो वी अगर हम अगले 10 साल अच्छा काम कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, सो इंडिया कैन आल्सो बी वन ऑफ द बिग पावर इन दिस AI field. Clear? So anyone who's left in the discussion? Yes, Mr. Tarun Jog. So I think almost everyone has been covered into the discussion. So tomorrow we will bring one topic, one practical question in the class. Clear? Again from the Zoom mode. Already है जो हमने last question किया था, I will show that program to you. Yesterday we have discussed. So I think this was the program. Clear? That is the program to find the largest element and the smallest element in the list. तो हमने क्या किया था, वो लिस्ट बनाई थी पहले। ये स्टेप में क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली ये एम्प्टी लिस्ट। फिर हमने नंबर्स इनपुट करवाए, कितने नंबर चाहिए हमें लिस्ट के अंदर, और ये जो लूप थी, दिस लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुटिंग द नंबर्स इनटू द लिस्ट। और ये देखो इसके अंदर अपेंड मेथड यूज किया है। अपेंड मेथड से क्या होगा, वो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। ठीक है? और बाद में हमने क्या किया, उसमें से मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर जो है उसमें से फाइंड आउट कर लिया। वी विल ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। इसको रन किया एंड यू सी दैट हाउ मेनी नंबर्स वी वांट। लेट्स से मैंने इसके अंदर रख लिया 8 नंबर चाहिए हमें। सो इट विल आस्क अबाउट द एंटर द नंबर्स इनटू द लिस्ट। क्लियर? ये सारे नंबर हैं इसके अंदर, एंड यू नो दैट इट हैज बीन एबल टू फाइंड दी मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये मैक्स फंक्शन का यूज किया हमने, और ऐसे मिनिमम के लिए हमने ये मिनिमम फंक्शन का यूज किया था हमने लास्ट टाइम। क्लियर? और ऐसे इसका जो दूसरा प्रोग्राम था वो हमने किया था कि एक लिस्ट ले ली है हमने,
लिस्ट के ऊपर हमने ये सॉर्ट मेथड अप्लाई कर दिया, और सॉर्ट मेथड के बाद उसमें से हमने ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक कर लिया। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। क्लियर? एंड लास्ट एलिमेंट के लिए ये हमने लिस्ट -1 यूज कर लिया, दैट इज टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो ये कल हमने प्रोग्राम किया था बाय वी हैव यूज्ड 2 मेथड्स। तो 2 मेथड्स के अलावा भी वी हैव डिस्कस्ड, कोई भी स्टूडेंट किसी भी मेथड से इसको कर सकता है। जैसे मेरे को पता नहीं किसने बताया था ये मेथड, दैट इज कि हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर करके भी हम मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली। यस, ये श्रिया ने बताया था। एंड वो बेसिकली उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च, जिससे हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ लीनियर सर्च। तो देयर आर डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं। तो जो श्रिया ने डिस्कस की है टेक्निक, दैट टेक्निक इज कॉल्ड लीनियर सर्च। ठीक है? So I have done linear and binary search in Java in my 10th standard also. हाँ, वो 10th में की होगी आपने। ये लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बहुत सारी सर्चिंग टेक्निक्स हैं। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हो तो इसके अंदर कम से कम 5-6 टेक्निक्स हैं हमारे पास सर्चिंग की। ऐसे हमारे पास सॉर्टिंग की भी टेक्निक्स होती हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, तो बहुत कुछ है काम करने के लिए। क्लियर? बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज एंड वी हैव टू बेसिकली प्रोसीड फर्दर। एक जो मैं और पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था कि जैसे ये देखो जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, क्लियर, दैट हैज बीन मेड इनटू जुपिटर नोटबुक। क्लियर? ये लेफ्ट साइड ये लिखा हुआ है जुपिटर। तो कम से कम इस क्लास का ये मीनिंग है कि हर स्टूडेंट के पास जुपिटर नोटबुक होनी चाहिए। क्लियर? नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। बिकॉज ये देखो आपको ये +2 में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर? अगर आप वो पाइथन आइडल से कर रहे हो, पाइथन आइडल इज नॉट ए वेरी गुड इंटरफेस। तो ये जुपिटर नोटबुक है, या आप स्पाइडर को भी यूज कर सकते हो, बट इसके लिए आपको वो अनाकोंडा 3 इंस्टॉल करके ये जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा इजी है। गूगल पे आप देखो, मेरे चैनल पे भी इसकी वीडियो पड़ी हुई है। वैसे भी आप गूगल से इसके स्टेप्स देख लो, 2-3 स्टेप्स है। अनाकोंडा 3 डाल के डाउनलोड अनाकोंडा 3 टाइप करो तो वहां उसका सॉफ्टवेयर आ जाता है, उसको डाउनलोड करो और जस्ट क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लो। कुछ भी उसके अंदर टेक्निकल नहीं है। और बाद में यहाँ पे ये जो विंडो है, यहाँ पे जो विंडो बटन के साथ होता है, यहाँ पे आपने जुपिटर टाइप करना है तो वो जुपिटर वाला लिंक सामने आ जाएगा और आपके ब्राउजर में जुपिटर नोटबुक खुल जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लास इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करने का ये बेनिफिट है कि हर बच्चे को दिख जाए कि हम अनाकोंडा 3 क्या है, ठीक है, जुपिटर नोटबुक क्या है। ये ना कि हमारी सारी +1 खत्म हो जाए और हमें पता ही ना चले कि इसमें जुपिटर नोटबुक, पता नहीं सर ये कौन सी नोटबुक की बात कर रहे हैं। और सेकेंडली बच्चों को ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि C++ हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में पाइथन है। सो दैट वी आर एट दी सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है? लास्ट पे आप लोगों का कोई पॉइंट है, एनी डाउट, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस, सो यू आर वेलकम। अभी भी क्लास के अंदर 2-3 स्टूडेंट्स हैं 2000 विदाउट द कैमरा। तो 2-4 तो मैंने रिमूव कर दिए हैं थोड़े सैंपल के लिए, 2-4 को मैंने छोड़ दिया है। क्लियर? और मींस दैट इज द बेंचमार्क। ये स्टैंडर्ड रूल है, जब भी आपने जूम क्लास अटेंड करनी है सो योर कैमरा शुड बी ऑन। क्लियर? और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, दैट इज टू गैलेक्सी 08 एंड वो जो है ओनर वाला जो था, ओनर 6X, प्लीज बेटा अपना नाम यूज करो, दैट लुक्स मोर प्रोफेशनल। मेरी क्लास में नहीं, आप किसी भी क्लास में जाओ, दैट लुक्स वेरी नाइस कि आपका नाम वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। देखो टीचर को, मैंने अमरवीर को आइडेंटिफाई करना, मैं इजीली आइडेंटिफाई कर लूंगा। अब मैं ऐसे किसी का नाम बोलूंगा ऐसे, सो दैट डजंट लुक नाइस। ठीक है? तो जो भी प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं, वी शुड फॉलो दोस एटिकेट्स इन दी क्लास। So thank you very much for making the very first class to be a very successful. आप भी अपनी साइड से बेटा कोई ना कोई फीडबैक, जैसे वीडियोस है, तो जैसे मेरे को पता था ये थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर हम इसको व्हाइट बोर्ड पे करते रहते तो मेरे को लगता है कि किसी को पता नहीं चलना था AI कैसी है कैसी नहीं। सो वी हैव टू ब्रिंग द AI जैसे वीडियोस है, तो किस लिए? जस्ट टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लास।
So at the end, I thank you all for being into the class and very patiently attending the class. Thank you, Bada. Thank you, everyone.